السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بہار میں آمد، انتخابی مہم کا سیمانچل میں کریں گے آغاز۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے علاقے میں نظامی کارروائی، پولیس کی موجودگی میں کی گئی کارروائی، متاثرہ مکین دکھائی دیے بے بس۔ کھمم کی وائی ایس آر کالونی میں 6 گھروں میں سرقے کی سنگین واردات، بھاری مقدار میں طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں تعمیر کی جانے والی قومی شاہراہوں کے لیے اراضی کے حصول اور معاوضے کی ادائیگی کے کام میں تیزی پیدا کریں۔ انہوں نے معاوضے کی ادائیگی کے معاملے میں عہدیداروں کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کام کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو قومی شاہراہ کی تعمیر میں ہونے والے فائدے کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے اراضی حوالے کرنے کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے متنازع اراضی کے معاملات کی عاجلانہ یکسوئی کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پیر کو قومی شاہراہوں کی تعمیر کے مسئلے پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مختلف پروجیکٹس کے لیے رقمی منظوری، اراضیات کے حصول اور متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی پر وزیر اعلیٰ نے تفصیلات حاصل کیں۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بہار میں آمد کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں کھلبلی دیکھی جا رہی ہے۔ بہار کے بگڈوگرا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم بہت پہلے ہی سے شروع ہو چکی ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر اختر الایمان کی قیادت میں انتخابات کے لیے کام ہو رہا ہے۔ انتخابات میں مجلس پوری مضبوطی کے ساتھ حصہ لے گی۔ سیمانچل میں ہم 4 دن مختلف حلقے جات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کریں گے اور جلسوں سے خطاب کریں گے۔ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ چناؤ کا پرچار آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ چناؤ کا پرچار شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ادھیکش اختر الایمان صاحب کی لیڈرشپ میں کام چل رہا ہے۔ ہم 2 مہینہ پہلے بھی آئے تھے، اپریل میں بھی آئے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ چناؤ میں ہم پوری طرح سے حصہ لیں گے اور اب سیمانچل میں 4 دن کا ہمارا وزٹ ہوگا۔ مختلف ودھان سبھا میں ہم اختر الایمان صاحب جائیں گے، وہاں پر عوام سے ملاقات بھی کریں گے، پبلک میٹنگ بھی کریں گے۔ ہم کو ہماری پارٹی کی فکر ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کی، ہمارے امیدواروں کی ہم کو فکر ہے، ان کو کامیاب کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اور اس سلسلے میں چاہے بہار کی میں جو پیڑت کمزور لوگ ہوں، جس میں دلت مسلمان ہیں، یا پھر سیمانچل کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا انصاف کی بات ہو، یہ سب لڑائی تو جنتا نے دیکھ لیا کہ اختر الایمان صاحب ایک اکیلے ودھائک رہتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی ہی پرزور طریقے سے اور بڑی بہادری کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ بہار کے لیے اور خاص طور سے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑی ہے۔ تو یہی امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم کریں گے۔ اب دیکھیے، اب نہیں معلوم، امید پہ تو دنیا قائم ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے۔ جو کاسٹ کی پالیٹکس بی جے پی کرتی ہے، دوسری پارٹیاں کرتی ہیں، اس کو کیا کریں گے آپ؟ جو کاسٹ کے نام پر سمیلن کرتے ہیں، اس کو کیا کریں گے آپ؟ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے دفتر تلنگانہ جاگرتی میں خاتون قائدین اور خواتین کے ساتھ بدکمہ تقریب میں حصہ لیا۔ پھولوں سے بدکمہ سجایا گیا اور اس تہذیبی اور ثقافتی تہوار کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ بدکمہ تہوار تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا تہوار نہیں ملتا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ گزشتہ میں
وعدہ کیا گیا تھا کہ بدکما کے موقع پر خواتین کو 2 ساڑیاں فراہم کی جائیں گی، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ کویتا نے کہا کہ صرف بدکما کی مبارکباد دینا خواتین کی عزت افزائی نہیں ہے، خواتین کو ان کے حقوق فراہم کیے جانے چاہیے اور خواتین سے کیے گئے وعدوں کے مطابق سہولتیں بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ మీ అందరికీ తెలుసు, సింగరేణి అంటే ప్రాణం నాకు. సింగరేణి కోసం ఇప్పుడు కాదు, తెలంగాణ రాకముందు నుంచి కూడా మరి మనకు కరువు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా అన్నం పెట్టినట్టు బొగ్గుబాయిలను మనం ఎన్నడూ కూడా మరవరాదు. ఆనాడు ఆంధ్ర వలస పాలనలో మన యువతకు ఉద్యోగాలంటే కేవలం బొగ్గుబాయి అన్నట్టే ఉండి మన బతుకు తెరువుకు సంబంధించి మనని కాపాడుకున్నటువంటి సిర్లవేణి సింగరేణి. మరి అటువంటి సింగరేణిని రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. అట్లనే డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఒకప్పుడు ఈ గుర్తింపు సంఘాలన్నీ పోగొట్టినాయో వాటిని స్వరాష్ట్రం వచ్చినాక మనం సాధించుకున్నాం. ఒకప్పుడు బెనిఫిట్లో ఉన్నటువంటి సింగరేణి దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం బకాయిలు పెట్టింది. అంటే ఆల్రెడీ సింగరేణి పాకెట్లో 42-43 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సినవి ఉన్నాయి. ఇది ఉండంగా ఇక్కడున్నటువంటి కొత్త బాయిలు తెరిచి ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్లకు కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సింది పోయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడనో కర్ణాటకలో పోయి బంగారం గని కొన్నారు, ఇంకెక్కడనో పోయి రాగి గని కొన్నారు. ఇంకా ఎంత సిగ్గుచేటంటే ఆ కొన్నటువంటి గనుల కట్ట చేయడానికి వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవట. అందుకని ఎల్ఐసికి పోయి మళ్ళీ 3,000 కోట్లు అప్పడుగుతా ఉన్నారు. స్వయంగా సింగరేణి దగ్గర 42,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే ప్రభుత్వం సింగరేణికి ఇవ్వకుండా, సింగరేణి ఇతర గనులను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా సింగరేణి పోయి మళ్ళీ ఎల్ఐసి నడుపుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే సంస్థను ఎట్లా దివాలా తీస్తున్నారు అన్న విషయం దయచేసి సింగరేణి కార్మికులందరూ అర్థం. मूसी रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना हुकूमत को फंड्स की फराहमी में उस वक्त राहत मिली जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले मरहले में 4,100 करोड़ कर्ज फराहम करने से इत्तेफाक किया है। मरकज़ी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्रोजेक्ट के लिए क़र्ज़ के हुसूल को मंजूरी दी। रियासती हुकूमत से बैंक मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में 4,100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 3 खानगी कंपनियों से तफसीली प्रोजेक्ट और मंसूबा अंदरून 2 हफ्ते दाखिल किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों से गुफ्तगू के बाद क़र्ज़ की मंजूरी में पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला की हिदायत पर बल्दी नज़्म व नस्क़ अहदेदारों ने मरकज़ी वज़ारत फ़ाइनांस के अहदेदारों से बात की। प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत को कोतवालगुड़ा में गेटवे ऑफ हैदराबाद और बापू घाट पर गांधी सरोवर तामीर करेगी। हुकूमत ने महात्मा गांधी के बुलंद क़ामत मुजस्सिमे को नस्ब करने का फ़ैसला किया है, जो दुनिया का बुलंद तरीन मुजस्सिमा होगा। गांधी के फ़लसफ़े को फ़रोग़ देने म्यूज़ियम के क़याम की तजवीज़ है। इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत को वज़ारत दिफ़ा से 250 एकड़ अराज़ी की मुंतक़िली ज़रूरी है। रियासत में वोटर लिस्ट पर स्पेशल एंटिट्यूड रिवीजन SIR के लिए काम शुरू हो गया है। बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस अमल को मुल्क भर में राइज करने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने 10 सितंबर को दिल्ली में तमाम रियासतों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स का इजलास तलब किया। कमीशन की रहनुमायाना खतूत के मुताबिक रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने 19 सितंबर को तमाम ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अहतमाम किया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स और आला हकाम को वाज़ेह हिदायत दी। वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ उमूर का जायज़ा लिया गया। SIR के तौर पर पहले मरहले में प्रोग्राम को मैपिंग और मैचिंग का नाम दिया गया है। इस मामले में ज़िले रेवेन्यू अहदेदारों के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। वोटर लिस्ट को 4 ज़ुमरों में तकसीम करते हुए इस अमल को 24 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद ज़िले अहदेदार इस काम में मसरूफ़ हो गए हैं। तेलंगाना में पहली मरतबा होने वाले SIR पर अहदेदार खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को मिदारम में समक्का सारलम्मा देवियों की पूजा की। इस मौके पर वज़ीर आला को गुड़ में तोला गया। वज़ीर आला का वज़न 68 किलो बताया गया है। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वज़ीर आला के मुशीर और कांग्रेस के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि समक्का सारलम्मा की मंदिर की तामीर उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए खुशकिस्मती है। माजी में फ़ंड्स के लिए हुकूमतें रोका करती थी, लेकिन हमने फ़ंड्स की कोई परवाह नहीं की है। कितने भी करोड़ की ज़रूरत पड़े हम उसके लिए खर्च करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कृष्णा आबी तनाज़े पर ट्रिब्यूनल में समाअत जारी है। तेलंगाना की तरफ से मुस्बित तौर पर अपने दलाइल पेश किए गए हैं। इस सिलसिले में वो वकला से मुलाकात और सलाह मशवरे के लिए दिल्ली आए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना के आबी हुकूक को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कृष्णा और गोदावरी के पानी के मामले में रियासत के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की तरफ से अलमाटी की बुलंदी में इजाफे पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि चाहे कर्नाटक की कांग्रेस, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम या फिर महाराष्ट्र की एनडीए हुकूमत हो, हम तेलंगाना के आबी मफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के हमरा नाले के कामों का जायज़ा लिया, जिसको डीआरएफ हाइड्रा टीम की जानिब से किया जा रहा है। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा रेलवे ब्रिज, कमान, तालाब कट्टा, छोटा ब्रिज के अलावा अंदरूनी नालों का भी मुआयना किया। इसके अलावा लब्बैक होटल के करीब जारी सीसी रोड के कामों का भी उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में लब्बैक होटल के बाजू में एक छोटी सी सीसी रोड थी 4 लाख की, वो भी रोड का काम आगाज़ हुआ। इसके अलावा हम ख़ास आज जो नाला क्लीनिंग का काम चल रहा है, जो डीआरएफ हाइड्रा की टीम काम कर रही है, वो क्लीनिंग का एक पूरा डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है जो डीआरएफ के ऑफिसरों के साथ में, जिसके अंदर जैसा आप देख रहे हैं कि याकुतपुरा रेलवे ब्रिज के बाजू से जो मेन नाले में मट्टी निकाली गई थी सिल्ट, उसका काटिंग का क्या हुआ वो देखना था। और जो विंड है, कमाना है, कमानों के अंदर की साफ़ सफाई के लिए वो देखा गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये तालाब कट्टे के ऊपर जो मेन नाला जा रहा है, छोटा ब्रिज है, वो सब की साफ़ सफाई का भी देखा गया। और उसके अलावा तालाब चिंचलम में जो छोटे नाले आ रहे हैं, अल्लाह का करम है कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी अच्छी डिसिल्टिंग हुई, नाला ओवरफ्लो के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मगर ऊपर से जो मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा हकीमपेट के अतराफ व अकनाफ के बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। मजलिसी रुकन असम्बली ने सरकारी स्कूल के मुनहद्दिम दीवार का भी मुआयना किया, जबकि नया खिला इलाक़े का भी उन्होंने दौरा किया। इस दौरे में मौजूद जीएचएमसी अहदेदारों को इन इलाक़ों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया और कामों को जल्द अज जल्द शुरू करने के सिलसिले में हिदायत भी दी गई। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। आगरा जेट लड़को
ఇలా కట్టుకొని ఇలా పెద్ద టీ చేసుకొని సబ్బులా కట్టి నేను అలాగే ఇచ్చి పెడదాం. ఇది హీరో ఒకటి పైన गला मारे नाम हो ना फोटो ले बोलते नहीं सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के साथ साथ आवाम की बेहतर सेहत के लिए भी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुसलसिल हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेहतमंद खातून और मजबूत ख़ानदान के मौजू पर हेल्थ कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के GHMC वार्ड्स ऑफिस के रूबरू मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में गायनकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, डर्माटोलॉजी, डेंटिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स के माहिर डॉक्टर्स ने मरीज़ों के मुआयने किए, बिलखुसूस ख़वातीन के मुआयने किए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शूरिया सली ने बताया कि शहर के 197 UPSC और 11 CHC में ये हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन में सेहतमंद रहने से ख़ानदान मजबूत रहेगा। इन कैंप्स में माहिर डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं और ख़वातीन को मुफ्त अद्वियात तक़सीम की जा रही हैं। मुख्तलिफ अमराज़ के खून के मुआयने भी किए जा रहे हैं। उन्होंने ख़वातीन से इन कैंप से इस्तिफ़ादे की अपील की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी हेल्थ कैंप से रुजू होने वालों और तिब्बी अमले से मुलाकात की। कैंप्स के मुख्तलिफ शोबेजात का भी रुकन असम्बली ने मुआयना किया। चलिए Madam is pulmonologist and also dermatologist. Madam is ENT specialist. She's general. District hospital. इधर ही दे दो मैडम, इधर ज़्यादा नहीं है तो मंगवाए हैं, आई ड्रॉप्स नहीं तो मंगवाए हैं। हमारे फार्मेसी सुपरवाइजर को डिस्ट्रिक्ट में फार्मेसी सुपरवाइजर को पोस्ट किए, पूरा निरंतर ये मैं आ रहा हूँ भाई, 1 मिनट में आ। अगर नहीं है तो भी आप खरीद लो, जरूरी है ठीक है। दर्द की गोली भी लिखी हुई है, वो भी खाइए, दवा दोपहर शाम। फिर मैं आगे बताएगा अच्छा लगा, ठीक है। नाम वाली मैं आगे बता दूँ, नाम वाली गवर्नमेंट हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता शाम से रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी था। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए।
आज सुबह तक भी मसरूफ शाहराहों पर पानी जमा देखा गया। गुज़िश्ता रात हुई बारिश के दौरान टू व्हीलर्स और ऑटो भी पानी में बह गए। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ के साथ बंजारा हिल्स और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। बारिश के पानी की नक्काशी के लिए इक़दाम किए गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रही। PVNR एक्सप्रेस पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई देखी गई। बताया जाता है कि आवाम 50 मिनट ताख़ीर से अपनी मंजिल को पहुंची। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जाता है कि रोकला बस्ती में पुलिस की मौजूदगी में आज सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी गई। निदामी कार्रवाई के दौरान मुतासरा मकीन जज्बात ही देखे गए। उन्होंने कहा कि उनका आशियाना मुनद्दिम किया जा रहा है, उन्हें मोहल्लत तक नहीं दी गई। बाज़ मकीन जज्बात से मगलूब देखे गए। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने RPF के साथ मिलकर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 बैन रियासती गांजा पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक
विगलार्जुन और वी श्रीनिवास उड़ीसा के ब्रह्मपुर से कोणार्क एक्सप्रेस में गांजा लेकर हैदराबाद पहुंचे थे। तलाशी मुहिम के दौरान काचीगुड़ा पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 11 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी मालियत 5,42,000 रुपये बताई गई है। बताया जाता है कि उड़ीसा से ये दोनों सिकंदराबाद पहुंचे थे और फिर MMTS ट्रेन के जरिए काचीगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। ट्रक पैलेट्स के पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। तेलंगाना खम्मम की YSR कॉलोनी में 6 घरों में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। एक घर में लगे हुए CCTV कैमरों में भी सारखीन की नकलो हरकत कैद हुई हैं। बताया जाता है कि भारी मकदार में तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरखा किया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुतासरा मकानात का मुआयना किया और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। CCTV की मदद से भी सारखीन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी शराब के खिलाफ हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। इन्फोर्समेंट की टीमों ने ब्रांडेड शराब की बोतलों को जब्त किया। बताया जाता है कि शमशाबाद में 125 लीटर, मुशराबाद में जॉनी वॉकर की बोतलें और तकरीबन 2010 किलो गुड़म्बे को भी जब्त किया गया है। निजामाबाद ज़िले के धर्मारम में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। इस वाक़े में 22 साला धर्मारम का साकिन सुशांत की मौत हो गई। दीगर 2 सड़क पर जा रहे अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में आमद, इंतखाबी मुहिम का सीमांचल में करेंगे आगाज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में निदामी कार्रवाई, पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, मुतासरा मकीन दिखाई दिए बेबस। खम्मम की वाईएसआर कॉलोनी में 6 घरों में सरक़े की संगीन वारदात, भारी मकदार में तिलाई जेवरात और 9 रकम का सरक़ा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ की इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।